Okay, so 10 a.m. Now we are discussing the third question of the day. The question is a very, very difficult question. It has never been asked before this year. 2018 से पहले ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं गया था. And after 2018 also, this kind of question has never been asked. So this was an out of the box question. Let's try to crack it down. Let's see what was UPSC expecting in this answer. So the question is a 20 marker question. It was asked in 2018 3A. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का A पार्ट था. And the question says, now it's very difficult to interpret also. Does collapse of functionalism and bankruptcy of Marxism, यहाँ पे फंक्शनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, एंड कोलैप्स तो कुछ नेगेटिव टर्म की है कि फंक्शनलिज्म के खत्म होने पे, और बैंकरप्सी ऑफ मार्क्सिज्म, और मार्क्सिज्म के भी उसकी आइडियोलॉजी वीक होने के, उसकी एक्सेप्टेंस कम होने पे, डिड इट कोइंसाइड विद रप्चर ऑफ मॉडर्निटी. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हेन मॉडर्निटी केम डाउन, अभी क्या है, राइट नाउ वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्निटी में क्या था, मॉडर्निटी में वाज रीजन एट इट पीक, रीजन वाज एट इट्स पीक. रीजनिंग से जो भी निकल के आ रहा था, दैट वाज कंसिडर्ड वैलिड, एवरीथिंग एल्स वाज कंसिडर्ड इनवैलिड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, कैपिटलिज्म, मर्केंटलिज्म, ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, जो हमने डिस्कस करी थी कि मॉडर्निटी के साथ क्या क्या हुआ था. तो मॉडर्निटी व्हेन इट गोज डाउन, अभी पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में क्या है, वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्टिविटी. Not everything can be explained by pure reason, by pure science. Individuals, we human beings are different, and everybody has their own interpretation of society, of their own values. तो ideology को ज़्यादा importance दी गई. And इसमें हम लिखेंगे कि modernity के खत्म होने पे, modernity के कम होने पे, was it because functionalism also collapsed and Marxism also went down. तो इन तीनों चीजों के कमजोर होने में हमें रिलेशन ढूंढना है. दैट इज इट. लेट्स सी. सो 20 मार्कर 250 वर्ड्स, यू हैव टू एलैबोरेट इट प्रॉपरली. अब फर्स्ट पॉइंट इज दैट मार्क्सिज्म, सो फर्स्ट आई नीड टू रिलेट हाउ मार्क्सिज्म एंड फंक्शनलिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम मॉडर्निटी ओनली. दे बोथ केम अप एट द थ्री थिंग्स, दे केम अप एट द सेम टाइम. Marxism and functionalism are both modern theories which emerged from the womb of enlightenment, the starting point of modernity. The process, the revolution, the age from which modernity came out, Marxism and functionalism also came out from the same age, from the same social change. ये होगी आपकी introduction. Now you have shown the relation between both, all the three processes, all the three keywords mentioned in your question. Now let's come to what we are supposed to write in the body. Now some sociologists say that there has been a move away. Now I am trying to link the body with what has been asked in the question. अब यहाँ पे हम जो introduction मैंने दिया, that directly does not relate to what has been asked. I am making a connector between my introduction and my body. उसके बीच में connector है जो कि उसको question से link करेगा. Some sociologists say that there has been a move from modernity to post-modernity. Rupture of modernity की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. तो जब society moves from modernity to post-modernity, does that lead to collapse of functionalism and bankruptcy of Marxism? ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि post-modernity तक जब हम जा रहे हैं, तो was it coincided by Marxism की weakness और functionalism की weakness? Let's see. First point is, let's talk about functionalism. अब functionalism में हम क्या बात कर रहे हैं? We will talk about कि how functionalism is still relevant. अब देखो, functionalism एक ऐसा school of thought है which try to find function in everything which is going on in society, whether it's negative also. ठीक है? They would find function in, let's say, in the oppression of Dalits also, in the oppression of women also. But ऐसा नहीं है. Functionalism is still relevant क्योंकि there were certain thinkers who actually studied
the negative things in society also. Not everything in the society is positive, not everything in society is functional. Functional matlab it is actually playing a function in the working, in the progress of society. तो ऐसा नहीं था, उन्होंने कुछ डिसफंक्शंस भी पढ़े, चीजें, ऐसी चीजें सोसाइटी में जो एक्चुअली सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम दे रही थी. तो यहाँ पे क्या है, इट नाउ लुक्स अ रादर डेटेड पर्सपेक्टिव. फंक्शनलिज्म को बोल रहे कि पुराना कॉन्सेप्ट लग रहा है अभी, डेटेड मतलब पुराना कॉन्सेप्ट, एंड इट हैज बीन हेविली क्रिटिसाइज्ड आल्सो कि भाई सब कुछ सोसाइटी में पॉजिटिव नहीं होता है. बट फंक्शनलिस्ट डोंट ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव एंड स्टेटस क्वो. वो हमेशा यही नहीं देख रहे कि सब कुछ सोसाइटी में अच्छा अच्छा हो रहा है. दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर थिंग्स, द नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एंड इसीलिए क्योंकि वो नेगेटिव थिंग्स भी देख पाए, इसीलिए वो अभी भी रेलेवेंट है. अगर वो सिर्फ पॉजिटिव देखते तो वो एक वन डायमेंशनल स्कूल ऑफ थॉट हो जाता. अब इसकी नेगेटिव में हम एग्जांपल दे रहे हैं कि एमिले दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड, ठीक है, ही वाज स्टडीइंग द सुसाइड रेट इन यूरोप, और उसमें उसने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज को कंपेयर किया था. तो सुसाइड इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, उसको भी उसने स्टडी किया, एंड इसमें ही गेव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमिक सुसाइड एंड ईगोइस्टिक सुसाइड की बात करी थी. एनिमिक सुसाइड मतलब कि पूरी सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ बिग सोशल चेंज, बिग फ्लक्स. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक बूम आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया पूरी सोसाइटी में. तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, ठीक है, उससे एनिमिक सुसाइड बनती है. पीपल, व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक बूम, people become very hopeful, very aspirational, they take loans, and when they are not able to repay the loans, they commit suicide. 2008 financial crisis में क्या था, people in the US, they lost their homes, they lost their properties, and this was a negative concept. उसमें भी because the whole society went through a big economic change, it led to anemic suicides, people committed suicides. Egoistic suicide भी वैसा ही concept है, when the individual values they do not match with the social values. मेरी values कुछ और हैं, society is pressurizing me to study education, UPSC crack करना है, IIT crack करना है, but I don't want to do that. So under that pressure, ठीक है, if my values are not matching, I will drift from the social values, and that will lead to depression, that will lead to seclusion from the society. तो जब आपकी वैल्यू सोसाइटी की वैल्यू से नहीं मिल रही है, एंड यू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आपको नौकरी करनी पसंद नहीं, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू आर सिटिंग इन योर होम, आपने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लिया, तो दैट माइट ऑल्सो लीड टू ईगोइस्टिक सुसाइड. देन मर्टन्स आइडियाज ऑन एनिमी, डिसफंक्शंस, क्राइम एंड डेवियंस, ठीक है. अब नाउ दीज आर बिग कॉन्सेप्ट्स, वी विल स्टडी देम व्हेन वी स्टडी मर्टन इन चैप्टर 4, बट एज ऑफ नाउ रॉबर्ट मर्टन इज अ फंक्शनलिस्ट, बट उसने भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स पढ़े. ही ऑल्सो स्टडीड एनिमी, के देर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो अलग बिहेव करते हैं सोसाइटी के बिहेवियर से, ठीक है, एंड ही स्टडीड दैट दिस एनिमिक बिहेवियर इज द रीजन पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द सोशल वैल्यू, सोशल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. तो उनकी भी, उनको उसने एक्नॉलेज किया. फिर ही स्टडीड डिसफंक्शंस आल्सो, दैट नॉट एवरीथिंग इन द सोसाइटी इज फंक्शनल. कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो नेगेटिव है, जैसे कि क्राइम. क्राइम इज अ डिसफंक्शन, क्राइम एक्चुअली लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. फिर डेवियंस, अगेन वही डेवियंट बिहेवियर की बात करिए. क्राइम इज अ डेवियंट बिहेवियर व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव द गोल सेट बाय सोसाइटी. सोसाइटी क्या कहती है, पैसा कमाओ, सोसाइटी कहती है कि एजुकेशन लो. अब मान लो आपके हालात ऐसे नहीं हैं, the resources in society are limited, the population is more, so not everybody can become rich. Those people who are not able to become rich or who cannot gain sufficient education, they try to go on a deviant path, अपना एक अलग path बना लेते हैं, and one of that paths is crime. They resort to criminal activities to gain money, to gain prestige, ठीक है, gangster culture जो है. Then third point is Parsons structural differentiation is associated with social change. Again, he talked about structural differentiation. This is a concept, ये हम social thinkers में आएगा. अगर आपने Parsons पढ़ा then you will be able to understand. But as of now, I'm just giving you that Parsons theory is also a part of ये जो point हम बात कर रहे हैं कि functionalists also study the negative things going on in the society, not just the positive and status quo.
फिर बी में अब हमने फंक्शनलिज्म की बात कर लिया. फंक्शनलिज्म 1/3 ऑफ आवर बॉडी इज ओवर. मार्क्सिज्म की बात करते हैं. एज ऑफ नाउ, टिल नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट फंक्शनलिस्ट्स, they do not just study the positive, the status quo, they are studying the negative concepts also, and that is why they are still relevant. That is why we still study them in our sociology optional. ठीक है. So it is not a dated perspective, it is not a dated school of thought. Then Marxism की बात कर रहे हैं. Marx has been accused of over emphasis on economic determinism. सीधा सीधा अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मार्क्स बोलता है कि पैसे से दुनिया चलती है. ठीक है. Those who have money, those who have control on the forces of production, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन बनाने के लिए जो भी चीजें की जरूरत होती है उस पे जिसका कंट्रोल है, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, जैसे कि मशीन्स हो गई, जिस पे उसका कंट्रोल है, दैट पर्सन डिटर्मिन्स द सोसाइटी. ठीक है. उसके दम पे दुनिया चलती है. तो मोटा मोटा मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है. बट अब ये मार्क्स की थ्योरी थी, बट देयर आर न्यू मार्क्सिस्ट. मार्क्स अपनी थ्योरी दे गया, मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट बन गया. उसके बाद जो लोग आए जो इसी स्कूल ऑफ थॉट को, इसी थिंकिंग को बिलोंग करते हैं, बट दे लिटिल बिट डेविएटेड फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. उसने और भी चीजें बोली. क्या? न्यू मार्क्सिस्ट है एंटोनियो ग्राम्स्की. ग्राम्स्की सेड दैट द एलीट्स, they are not just using economics, they are not just using capital, land, forces of production to rule the society, they are also using culture. यहाँ पे culture का use, the ruling class. ये statement, it's a very famous statement by Marx, that the ideas of the ruling class are the ruling class ideas. ठीक है. इसका मतलब ये है कि whatever ideas, अब कोई भी एलीट, एक माइनॉरिटी, एक जब सोसाइटी को रूल कर रही है, व्हेन ब्राह्मण्स वर एट द टॉप and they gave the ideas of caste system, they said that these are the rituals you should follow, this is how the society should work, whatever their ideas were, they became the ideas of the entire society. The entire society was following what Brahmins were saying. So they used culture to rule the society. यही कहा था एंटोनियो ग्राम्स्की ने कि जो रूलिंग एलीट्स हैं, दोज हु रूल द सोसाइटी, दे आर एक्चुअली यूजिंग मैनिपुलेटिंग कल्चर टू स्प्रेड देयर ओन आइडियाज एंड दे आर मेकिंग देम अ रूलिंग क्लास आइडियाज. दीज आर द आइडियाज व्हिच शुड रूल द सोसाइटी. ठीक है. फिर बात आती है पोस्ट मॉडर्निस्ट्स की. दे चैलेंज मार्क्सिज्म. अब मार्क्सिज्म के अंदर ही कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट के नाम मैंने मेंशन किए हैं जो कि मार्क्सिज्म को चैलेंज कर रहे हैं. कैसे कॉन्सेप्ट देखे? लियोटार्ड है, ही सेज दैट कम्युनिज्म का जो इतना ढिंडोरा पीटा था मार्क्स ने कि कम्युनिज्म विल कम एंड इट विल सॉल्व ऑल द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, देयर विल बी परफेक्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी, एवरीबडी, नोबडी वुड बी रिच, नोबडी वुड बी पुअर. तो इसका तो कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया. ठीक है. वी आर स्टिल वेटिंग. ये एक यूटोपिया रह गया, ये एक फ्यूचर में उसने प्रेडिक्शन करी तो अभी तक हम उस पर पहुंच नहीं पाए हैं. तो लियोटार्ड ही सेज कि ये तो ट्रू भी नहीं हुआ अभी तक. तो दिस इज हाउ ही डिस्कार्ड्स मार्क्सिज्म एंड कह रहा है कि अभी क्यों कम्युनिज्म को इतना सीरियसली भी नहीं लिया जाता. सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, communism in China is there, but still it is moving slowly, it is moving towards a capitalist society. ठीक है. कम्युनिज्म के नाम पे वो they are actually using capitalist theories, capitalist laws to rule their masses. फिर पकुल्स्की एंड वाटर्स की बात करते हैं. ये क्या बोलते हैं कि they are good at class differences are irrelevant. भाई कोई अमीर है, कोई गरीब है, उससे फर्क नहीं पड़ता. They say that image, whatever image you have in society, the way society perceives you, that is more important, that has become much more important in determining your status. ठीक है. अब इसमें आप ऐसे बोलो कि there are some people who are poor but they are more respected in society. अन्ना हजारे. ठीक है. ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो that image has become more important rather than सिर्फ अमीर को ही इज्जत नहीं मिलती है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अमीर हो तो आप दुनिया की सारी इज्जत कमा रहे हो, एंड इफ यू आर पुअर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड. दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. क्लास इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. इमेज ऑल्सो, द वर्क यू डू, जितने आपको भारत रत्न मिलते हैं, जितने आपको अवार्ड्स मिलते हैं, you do good in sports, you do good in social service, these are the images
which actually again plays a role in determining your status in society, the way society treats you. ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, कंक्लूजन देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन. Yet studies of social mobility, अभी ये आर्गुमेंट है, इसके बाद कंक्लूजन है. Yet studies of social mobility, like अब यहाँ पे I have added novelty to my answer. I've added जनरल स्टडीज का जो डेटा है, कुछ करंट अफेयर्स का डेटा है, वो मैंने यहाँ पे डाला है टू मेक माई आंसर वे मोर क्रेडिबल, सो दैट आई कैन रिलेट सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड मी. अब देखो, ये स्टडीज ऑफ सोशल मोबिलिटी, अब यहाँ पे मैंने ऊपर क्या किया, मैंने मार्क्सिज्म को कुछ थिंकर्स का नाम देके आई रिजेक्टेड कि भाई इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हैज वीकन्ड, पैसे से ही दुनिया नहीं चल रही है, और भी चीजें हैं. बट अगेन आई bring back the reason of Marx कि still money is very very important. जो inequality है सोसाइटी में in terms of अमीर गरीब का जो डिफरेंस है, that is very very relevant. और इसमें मैंने दो चीजें, दो इंडेक्स का नाम दिया है. एक तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये आप पढ़ते हो, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है. इट टॉक्स अबाउट सोशल मोबिलिटी के पैसा जब होता है तो आप ज्यादा तरक्की कर पाते हो सोसाइटी में, ठीक है. एंड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, जो जीनी इंडेक्स होता है, जीनी इंडेक्स टॉक अबाउट वो कंट्रीज को रैंक करता है कि हाउ मोर इनइक्वालिटी इज देयर इन दिस कंट्री एंड हाउ लेस इनइक्वालिटी इज देयर. तो इंडिया में जीनी इंडेक्स में देखें तो इट्स अ वेरी लो रैंक, ठीक है. हमारे यहाँ इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है. तो इनइक्वालिटी की अगर बात करें, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, पैसे की बात करें, पैसे के टर्म्स में इनइक्वालिटी जो है, दैट शोज दैट क्लास इनइक्वालिटी इज हाईएस्ट इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज. कि आप कहते हो कि पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया है, ठीक है, बट वहां पे भी मार्क्सिज्म इज स्टिल रेलेवेंट. क्या मार्क्सिज्म का क्या आर्गुमेंट कि इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दे डिटर्मिन योर स्टेटस. तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में भी पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू है, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दीज टू इंडेक्सेस. इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम इज एक्चुअली वेरी वेरी हाई इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज ऑल्सो. तो मनी इज स्टिल रेलेवेंट. एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया. देखो, जो यूएस में कुछ साल पहले ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट था, where they said that we are the 99% and the top richest are the 1%. इसको 1% protest revolution भी बोलते हैं. That the 1% people in the society, they are occupying all the resources of the society, and the 99% जो हैं वो गरीब रह गए. And Occupy Wall Street में आपने इसके बेसिस पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चला था. वॉल स्ट्रीट के रिचेस्ट पीपल, उनको टारगेट किया गया था, आम यूएस की आम लोगों ने. एंड दिस यू कैन मेंशन व्हेनेवर यू हैव टू शो दैट मनी इज स्टिल रेलेवेंट. पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम. वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर मिनिमम वेजेस. वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर आवर इकोनॉमिक राइट्स. अब यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिख दिया है. अब हमने फंक्शनलिज्म की बात करी, मार्क्सिज्म की बात करी, उसको मॉडर्निटी से रिलेट किया, पोस्ट मॉडर्न से भी रिलेट किया. कंक्लूजन में यह है कि फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म दे कंटिन्यू टू बी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग इवन द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी. तो मॉडर्निटी में से निकले थे फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म, बट दे आर स्टिल रेलेवेंट. वो खत्म नहीं हो गए मॉडर्निटी के खत्म होने के साथ. पोस्ट मॉडर्निज्म आने के बाद भी मार्क्सिज्म एंड फंक्शनलिज्म आर स्टिल रेलेवेंट, और वो रेलेवेंस हमने ऊपर सारी दिखा दी है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. I hope this was a very difficult question. I hope you understood how you were supposed to tackle this question. Let's meet again on Monday. We will be covering 3 to 5 questions on a daily basis in this time slot only, giving 10 to 15 minutes to every question. So this series will go on. Let's meet again Monday 9 a.m. with few more questions. That is it for today. Thank you.